Hello friends, in the previous video we have covered this aspect that why and how the person will become resident of India. If you will have a look at the previous video, we have done that there were two tests, and when the individual is able to satisfy either of the tests, one of the tests, so in that case the individual was proved to be the resident. That was, first test was related to 182 days and the second test was 60 days plus 365 days in the previous 4 years. Then we have done about one of the newly added insertion in the Income Tax Act regarding whenever a person is having income more than 15 lakh, in that case he is deemed to be resident if his income is taxable in India. Now by those tests a person will become resident, but the question will not end over here. Further you will have to prove whether that person is ordinarily resident or that person is not ordinarily resident. So one of these categories the person will fall. Once you apply these two tests, question will not be over. Again you have to apply two tests to check whether that person is ordinarily resident and not ordinarily resident. One thing you should be clear about that, if in the first instance the person is not a resident, it means one of the tests could not be satisfied. In that case, the person will become non-resident. And when the person is non-resident, in that case, you will not apply these two tests. There is no need to apply these two tests. These will be applicable only and only if the person is proved to be resident. जो हमने दो टेस्ट करे थे, उनमें से एक टेस्ट अगर वो पर्सन सेटिस्फाई करता है, that person will be resident, तभी आपने आगे चलना है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को चेक करने के लिए. अगर वो पर्सन पहले ही नॉन रेजिडेंट प्रूव हो चुका है तो आपने आगे नहीं चलना. दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट पर्सन इज नॉट रेजिडेंट. नाउ व्हाट इज दिस ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट? नाउ टू प्रूव दैट अ पर्सन इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन you have two tests. Now the first test says that you have to prove that the person was in India and he was the resident of India in 2 out of 10 previous years. Resident 2 out of 10 previous years. Which previous year? Immediately preceding the current previous year. अगर आपका आज previous year 2022-23 चल रहा है तो आपने इसके पिछले 10 साल यहां नोट डाउन कर लेने हैं. उन 10 सालों में से यू हैव टू प्रूव किन्हीं 2 साल में द पर्सन वॉज रेजिडेंट. अब रेजिडेंट कैसे बनेगा? वही 182 डेज वाला टेस्ट लगाएंगे या फिर 60 डेज वाला टेस्ट लगाएंगे और साथ में 365 डेज भी लगाएंगे. एंड थर्ड ऑल्सो दैट वी हैव डन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A. तो आपने अपने प्रीवियस ईयर से पिछले 10 प्रीवियस ईयर चेक करने हैं, उसमें से किन्हीं 2 सालों में द पर्सन शुड बी एबल टू सेटिस्फाई ईदर ऑफ द टेस्ट. पर्सन शुड बी रेजिडेंट. ये हो गया पहला टेस्ट. दूसरा टेस्ट, सेकेंड टेस्ट कहता है कि आपने पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में चेक करना है हिज टोटल स्टे in India in the 7 previous year should be minimum 730 days. अब ये 7 previous year कौन से हैं? सेम वही अपने previous year से पिछले 7 साल. तो अगर इससे पिछला साल लेना है आपने, that will be 21-22, next will be 20-21. ऐसे आपने पिछले 7 years नोट डाउन कर लेने हैं. उन 7 years में उस बंदे का टोटल स्टे ढूंढना है. इफ दैट स्टे इज मोर देन और इक्वल टू 730 days, we will say the second test is satisfied. अब अगर एक पर्सन जिसको हमने पहले रेजिडेंट प्रूव करा उसने ये दोनों टेस्ट, बोथ टेस्ट सेटिस्फाई कर लिए तो हम कहेंगे द पर्सन इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. रेजिडेंट तो पहले ही प्रूव हो गया था, अब वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव हो गया. बट अगर कोई पर्सन इनमें से एक टेस्ट सेटिस्फाई कर पाए, कौन से 2 टेस्ट करे? 2 out of 10 प्रीवियस ईयर वो रेजिडेंट होना चाहिए और 7 में से 730 डेज वो इंडिया में होना चाहिए. तो अगर वो पर्सन दोनों में से कोई एक टेस्ट सेटिस्फाई करता है या दोनों ही नहीं कर पाता, द पर्सन विल बिकम रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट तो प्रूव हो चुका है, बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट.
उसको बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। सो आपको दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करने जरूरी हैं अगर आपने उस पर्सन को रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनाना है। अगर एक नहीं कर पाता या दोनों ही कर पाता वो, द पर्सन विल बिकम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, हियर इट इज गिवन मिस्टर एक्स ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहा है इंडिया में, June 15, 2017। अब 17, 18 ऑनवर्ड्स आपको बता दिया वो कितने कितने दिन इंडिया में उसका स्टे है। सो 2017-18 मीन्स 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018। इसी तरह हर फाइनेंशियल ईयर का आपको स्टे बता दिया। अब आपको वो कह रहा है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। सो टू कैलकुलेट द रेजिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले आपने जो हमने पिछली वीडियो में करा कि आपने चेक करना है वो पर्सन रेजिडेंट है कि नहीं है। अब रेजिडेंट चेक करने के लिए हमने 3 तरह के टेस्ट करे थे। फर्स्ट टेस्ट क्या था, प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ये है 2022-23। ये वो साल है जिसमें आपने इनकम अर्न करी है। सो पहला टेस्ट हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर में हमारा स्टे 182 डेज है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली 182 डेज नहीं है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब हम सेकेंड टेस्ट चेक करेंगे। टू चेक द सेकेंड टेस्ट, इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, वो क्या था, 60 डेज प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए। 60 डेज से ज्यादा है 80 डेज, प्लस आपने उसके पिछले 4 साल, ये रहा 1, 2, 3, 4, इसके पिछले कंसेक्यूटिव एकदम साथ वाले पिछले 4 साल, ठीक है, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, इन चारों को प्लस करके हम देखेंगे इसका स्टे कितना बनता है। सो 115 प्लस 15 प्लस 191 प्लस 124, तो ये टोटल करके हमारा बन रहा है 445 डेज। तो हमारा प्रोविजन क्या कहता है, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर सेटिस्फाइड, पिछले 4 सालों में इट शुड बी मोर देन 365 डेज। सो ये 4 साल जो थे पिछले, इसमें 365 से ज्यादा ही बन रहा है। सो इट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया द पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यू हैव टू राइट दीज प्रोविजंस इन द एग्जाम। आपको लिखना है ये सारा कि टेस्ट 1 6 सबसेक्शन 1 के अंडर क्या है और सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंडर क्या है। जो हमने पिछले वीडियो में करा था कि जो आपका फर्स्ट टेस्ट है रिगार्डिंग 182 डेज वाला, वो आपका आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। ये जो दोनों टेस्ट हमने करे थे, राइट, इसके हमने सबसेक्शंस भी करे थे। जो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, वो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंडर। तो आपने ये सारा वहां पर यू हैव टू मेंशन इट, लाइक कि आपने प्रोविजंस भी लिखनी है सारी टेक्स्ट की। ओके, नाउ आई हैव मेड यू क्लियर। अब जो थर्ड टेस्ट था उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट वाज द प्रोविजन वाज कि सैलरी शुड बी मोर देन 15 लाख, ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और हमारा सेकंड टेस्ट पहले सेटिस्फाई हो चुका है। सो इट मीन्स नाउ द पर्सन इज प्रूव्ड टू बी रेजिडेंट। अभी क्वेश्चन यह खत्म नहीं होगा, जैसे ही आपने रेजिडेंट प्रूव कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या वो पर्सन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या वो पर्सन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। उसके लिए अभी हमने प्रोविजंस पढ़ी कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए आपको फिर से 2 टेस्ट को चेक करना है। पहला टेस्ट क्या था, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। अब इतना डाटा नहीं है हमारे पास 10 का, तो जितना अवेलेबल है उसी में से लेंगे, बिकॉज वो पर्सन इंडिया में आए ही पहली बार है June 15, 2017 को, तो उससे पहले का स्टे नील ही बनता है, राइट। सो आपने देखना है कि वो दोनों प्रोविजंस अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट प्रोविजन थी कि आपने चेक करना है 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर ही शुड बी रेजिडेंट, 2 सालों में। अब रेजिडेंट कैसे बनते हैं, वही 182 डेज या फिर 60 डेज और पिछले 4 साल। तो अभी हमारा प्रीवियस ईयर में अगर हम यहां पर चेक करें 182 से कम है, राइट, बट यहां पर हम 60 डेज वाला कंडीशन चेक करके देखते हैं इन चारों को प्लस करके। तो अगर मैं बात करूं 2021-22 की, तो हमारा स्टे है 124 विच इज मोर देन 60 डेज, 60 डेज से पहले ही ज्यादा है, तो वो कंडीशन पूरा कर रहा है। प्लस इसके 4 साल पिछले मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या ये 365 से ज्यादा है। यस, ये बन रहा है 441 डेज। तो इट मीन्स यहां पे इस ईयर में ये बंदा रेजिडेंट प्रूव हो रहा है, राइट। सो हमने करना है इसके पिछले 10 साल में कोई भी 2 साल, 1 साल मुझे मिल गया। इस ईयर में आप देखिए 191 डेज है, तो यहां पर पहले ही 182 से ज्यादा है, तो मतलब पहला टेस्ट ही सेटिस्फाई हो रहा है।
तो दोनों टेस्ट मेरे यहां पर 2 साल मुझे मिल गए। 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर वो रेजिडेंट है। यस, तो मेरा टेस्ट नंबर 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि दोनों टेस्ट हमें यहां पर सेटिस्फाई करने जरूरी है। दूसरा टेस्ट क्या है कि आपने अपने प्रीवियस ईयर से पिछले 7 ईयर्स, ये सारे साल, इसके पीछे तो हमारा स्टे है ही नहीं, तो वो 0-0 ही है। तो ये 7 ईयर्स, ये जबकि हमारे पास 5 ईयर्स ही हैं, इसका टोटल स्टे शुड बी 730 डेज और मोर। अब इन सबको प्लस करके देखते हैं कितना बनता है। एंड टोटल दिस स्टे कम्स आउट टू बी 565 डेज। हमें चाहिए एटलीस्ट 730। इट मीन्स मेरा जो टेस्ट 2 है ऑफ चेकिंग ऑर्डिनरीली रेजिडेंट वो नॉट सेटिस्फाइड है। इट मीन्स हमने कहा था दोनों टेस्ट की कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। ये सेकंड वाला जो है हमारा टेस्ट, इट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। इट मीन्स वो बंदा ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव नहीं हो पाया, वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट प्रूव हो पाया। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? यू हैव टू राइट इन द थ्योरी लैंग्वेज फुल्ली दैट मिस्टर एक्स he stayed in India in the previous year for 80 days and in the previous 4 years he stayed for 445 days. So it means our second test under section 6 subsection 1 test, second test is satisfied. The person is resident in the relevant previous year, but his total stay in the 7 previous year preceding the relevant previous year is total is 565 days. But we require, according to the section 6 subsection 2, we require 730 days. So he cannot be treated as ordinarily resident. We cannot call him ordinarily resident. So आपने उसका लास्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे लिखना है? आप लिखोगे मिस्टर एक्स इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट in the previous year 2022-23। इस साल का हम उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं। और वी कैन राइट असेसमेंट ईयर 2023-24। असेसमेंट ईयर ये है और प्रीवियस ईयर हमारा ये है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन विद द प्रोविजंस। सो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन हाउ यू विल कैलकुलेट अ पर्सन इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट। थैंक यू।